In the first class, we have discussed about the concept of limit. For existence of limit, right hand limit must be equal to left hand limit. How to calculate right hand and how to calculate left hand limit, that we have discussed. Some concepts based on the limits. In the next class, we have discussed some of the standard forms as well as basic rules to find out the limits. Factorize किया जाए, rationalize किया जाए, ठीक है ना? There were some standard form like limit x tends to a x raised to power n minus a raised to power n upon x minus a, that is equals to n into a raised to power n minus 1 derive भी किया था और हमने उसको apply भी किया था. Today we are going to discuss about the trigonometric limits and then miscellaneous question. Trigonometric limits. The first one, limit x tends to 0 sin x by x. Most of the questions are based on this. Limit x tends to 0 sin x by x is equals to 1. Limit x tends to 0 sin x by x is equals to 1 where x is there in the radians. जो x है वो डिग्री के टर्म में नहीं है, that is there in the radian term. So limit x tends to 0 sin x by x is 1. और इनफैक्ट इसी रिजल्ट की बात करें, इसी रिजल्ट से हम फाइंड आउट कर सकते हैं one more result which is limit x tends to 0 tan x by x. Limit x tends to 0 tan x by x, that is also equals to 1, but with the help of this result. कैसे देखिएगा? That is limit x tends to 0 tan x by x. tan x को कन्वर्ट किया आपने sin by cos में, that sin x by cos x, right? Now limit x tends to 0 cos 0 is 1. We have discussed algebra of limits, if you remember. Limit x tends to a fx plus gx, fx minus gx, fx into gx, fx, ठीक है ना, divide by gx. कब कर सकते हैं लिमिट सेपरेट, कब कर सकते हैं उसको, that we have discussed. Limits must be finite numbers and in case of denominator it cannot be equals to 0. यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें लिमिट x tends to 0 sin x by x, that's 1. ये रिजल्ट तो हमारे पास ऑलरेडी है. लिमिट x tends to 0 sin x by x is 1. लिमिट x tends to 0 cos x, cos 0 is 1. मैं डायरेक्ट लिमिट रख रहा हूं यहाँ पर. cos 0 is 1, that's a finite number not equals to 0, इसलिए सेपरेट लिमिट रखने में कोई दिक्कत नहीं है. cos 0 is 1, finite number other than 0. cos 0 1 and limit x tends to 0 sin x by x is 1, so that is equals to 1. Limit x tends to 0 tan x by x is also equals to 1. ठीक है ना? और most of the questions are based on this. At the same time एक और बात जो रिक्वायर्ड है और वही है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज में जो आपने फॉर्मूले प्रिपेयर किए थे वो सब कुछ यहाँ लग जाएंगे. साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, हाफ एंगल के टर्म्स में कुछ फॉर्मूले लगेंगे, कुछ साइन टू ए, कॉस टू ए, टेन टू ए, ऑल दीज आर रिक्वायर्ड हियर. इसीलिए आप जब ट्रिगो पढ़ते हैं इनिशियल स्टेजेस में तो वो दैट इज रिक्वायर्ड फॉर मैथमेटिक्स, होल मैथमेटिक्स, नॉट ओनली फॉर क्लास 11 बट कंप्लीट मैथमेटिक्स 11 12 पूरा मिला लीजिए आप उसमें. ठीक है, तो बेसिक इनिशियल लेवल से. अब अच्छा इसमें एक और बात देखिएगा. इफ आई से लिमिट x टेंड्स टू 0 sin tan x by x and if you want to find out that limit, तो एक बहुत सिंपल सी बात है. लिमिट x टेंड्स टू 0 बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0 sin tan x by x, the result which we are aware of, that is limit x tends to 0 sin x by x is 1. तो x tends to 0, अच्छा हो क्या रहा है, किस फॉर्म में, ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में, तभी तो हम बात करते हैं लिमिट की. x tends to 0 sin 0 0 0, it is in which form, that is in the form of 0 by 0. When x tends to 0 sin x also tends to 0 and x tends to 0 the denominator is 0, so that is in the form of 0 by 0. So limit x tends to 0 sin tan x by x, ये लिमिट आपको इवेलुएट करनी है. तो कैसे करेंगे आप? sin tan x by x you'll have to multiply and divide by 10. The reason numerator में sin tan x divided by x, तो आप x को 10 x बना लेंगे, that means multiplication and division by 10. लिमिट आप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे. sin tan x by 10x, लिमिट x tends to 0 is 1 into 10. लेकिन आप समझिएगा, आप ऐसा डायरेक्टली कैसे लिख दिया आपने, 1 into 10 that's 10, result is 10. The reason is when we say x tends to 0, जब x 0 की तरफ टेंड करता है, when x tends to 0 tan x also tends to
0. जब x 0 की तरफ टेंड करता है तो tan x ऑल्सो टेंस टू 0. ठीक है ना? तो दैट्स वाई दैट्स लिमिट x टेंस टू 0 sin tan x अपॉन tan x इज 1. क्लियर होना चाहिए. बोले सर 1 कैसे हो गया? sin x बाय x इज 1. इट इज sin tan x अपॉन tan x. तो आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, दैट्स ओके. आप 1 कैसे लिख रहे हैं? आपने बताया लिमिट x टेंस टू 0 sin x बाय x इज 1, और आप अप्लाई कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0 sin tan x अपॉन tan x में. द रीजन इज when x tends to 0, tan x also tends to 0. That's why we are keeping that sin tan x by tan x is 1, and you will be getting the result as 10. वो result 10 होगा क्योंकि x tends to 0, tan x also tends to 0. Look for the question based on this. एक ही जो बात है एक्चुअल में देखा जाए तो that is limit x tends to 0 sin x by x is 1, और questions जो होंगे those are based on that. तो विल बी डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. देखिएगा काफी ट्रिको भी अप्लाई करना होगा यहाँ पर आपको. सो इवेलुएट द लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x minus sin x by x cube. You have to find out that limit. Limit x tends to 0 tan x minus sin x by x cube. इस लिमिट को इवेलुएट करना है. जस्ट थिंक ओवर दैट. 0 लिमिट x tends to 0 tan x minus sin x by x cube. You have to evaluate this limit. tan x minus sin x by x cube. अच्छा, first of all, if you keep x tends to 0, what form you are getting? X tends to 0, tan 0 0, sin 0 0. It's 0 by 0. Yes, it's a form of 0 by 0. Definitely limit find out करना मतलब indeterminate form से बाहर लेके आना होगा हमें. So it is limit x tends to 0 tan x minus sin x. tan x को हमने कन्वर्ट किया sin by cos. देखिएगा स्टेप बाय स्टेप, छोटा सा सवाल है लेकिन आप लोगों को इनिशियल स्टेजेस से सीखना है, देखना है. that sin x by cos x minus sin x by x cube. Limit x tends to 0. Sin x we have taken common. Sin x common लिया. Sin x common लिया, and then we have taken the LCM. That's 1 minus cos x divided. ठीक है ना? 1 minus cos x by cos x and into x cube. ठीक है. tan x को sin by cos किया हमने, sin कॉमन लिया, 1 minus cos x by x cube into cos x. देखो जहां तक कि x tends to 0, cos 0 is becoming 1. cos 0 is 1, तो इसकी दिक्कत नहीं है. लिमिट x tends to 0. sin x by x cube. तो sin x by x, because limit x tends to 0, sin x by x is 1. सेपरेट किया into 1 minus cos x. मैंने आपको बताया ना ट्रिगो में कंफर्टेबल होना पड़ेगा हमें. cos 2x is equals to 1 minus 2 sin square x. cos 2x होता है, बहुत क्लियर, बहुत कंफर्टेबल होना जरूरी है. cos 2x, that cos 2x is equals to 1 minus 2 sin square x. So cos x is equals to 1 minus 2 sin square x by 2. So 1 minus cos x is becoming what? ये नहीं लिखना चाहिए, हम ट्रिगो काफी डिटेल में बात कर चुके हैं. That's 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 by x square into 1 by cos x. बहुत क्लियर कट देखते जाइएगा. जहां तक लिमिट x tends to 0 sin x by x becomes 1. x tends to 0 cos 0 is also equals to 1. Right? बोले सर इसका क्या किया जाए? It's sin square x by 2 upon x square. Here it is sin square x by 2 upon x square. Sin square x by 2 is what? Sin x by 2 into sin x by 2. Sin square x by 2 is what? Sin x by 2 into sin x by 2. Sin थीटा बाय थीटा के टर्म्स में अगर मुझे लाना होगा तो sin x by 2 into sin x by 2 किससे डिवाइड करना होगा?
x by टू होना चाहिए, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय 4। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आपको सीखना है इनिशियल स्टेजेस 11th क्लास के अकॉर्डिंग। 12th में आप बहुत डिटेल लेवल पे पढ़ने वाले हैं, बेसिक्स हो जाए भाई। साइन मैंने अभी बताया था आपको, इफ इट इज साइन 10x अपॉन x यू विल हैव टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10, क्योंकि साइन 10x अपॉन 10x विल बिकम 1। सिमिलर वे इफ इट इज साइन x बाय 2 अपॉन x, तो आपको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना होगा, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर x बाय 2 है, तो 4 से मल्टीप्लीकेशन 4 से डिवीजन, क्या बन जाएगा ये? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x 1 cos 0 1, this is also going to become 1, so it's 1, it's also 1 1, and the result is 2 by 4, that's 1 by 2, that's the result। ठीक है? Then think over, limit x tends to 0 10x minus sin x upon sin cube x, just think over this, limit x tends to 0 10x minus sin x upon sin cube x, you are comfortable this with this? sin square x by 4 sin square x by 2 upon x square था, क्लियर है आपको? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, क्यों? राइट, sin x by 2 upon x by 2 that will become 1, sin x by 2 upon, भाई नेक्स्ट सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे बिल्कुल डाउट नहीं चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0, इट वाज sin स्क्वायर x by 2 है ना, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। इफ यू आर हैविंग एनी डाउट कि व्हाई यू मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड बाय 4, देख लीजिएगा, दैट्स लिमिट x टेंड्स टू 0, दैट्स सिंपली sin x by 2, आप डायरेक्ट करेंगे लेकिन समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपॉन sin x by 2 इंटू sin x by 2 डिवाइडेड बाय, ये x स्क्वायर है, x इंटू x, राइट, sin थीटा बाय थीटा के टर्म्स में लेके आना होगा आपको। सो ठीक है, x by 2 करना होगा, दैट मीन्स मल्टीप्लीकेशन बाय 4। I hope it's very clear now. You can note down this and just think over this. Limit x tends to 0 tan x minus sin x by sin cube x. What we have solved, that is limit x tends to 0 tan x minus sin x upon x cube is coming as 1 by 2. And the next question, ध्यान से देखिएगा, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें। tan x minus sin x by sin cube x, ठीक है ना, sin theta by theta is 1, here it is sin cube x, हमने क्या कलाकारी करी, sin cube multiplication and division by x cube, so that limit x tends to 0 sin x by x becomes 1, तो limit x tends to 0 sin cube x upon x cube also becomes 1, ये पूरा 1 बन जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin cube x, बोले सर ये सेपरेट लिमिट रख सकते हैं, जरूर रख सकते हैं आप, बिकॉज यू आर गेटिंग अ फाइनाइट लिमिट 1 विच इज नॉट 0, ऐसा प्लस माइनस में नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखने वाली बात है। यहाँ पे मैंने लिमिट, यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin cube x अपॉन x क्यूब, इसको 1 रखा और हटा दिया, दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x minus sin x by x cube, it becomes the same question and the result remains same, that's 1 by 2, sin theta by theta equals to 1 और इसको हटा दिया, डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ठीक है ना, बेसिक लेवल के क्वेश्चन से, एलिमेंट्री क्वेश्चन से। अगेन इवेलुएट द लिमिट्स, limit x tends to 0, first we are discussing the trigonometric limits only, based on limit x tends to 0 sin x by x 1, limit x tends to 0 sin square px upon sin cube sin square qx, evaluate this limit। Second one,
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 sin 2x plus sin 6x divided by sin 5x minus sin 3x, right? Limit x tends to infinity sin of a by 2 raised to power x divided by sin of b by 2 raised to power x. Questions based on the trigonometric limits only. Limit x tends to 0 sin of alpha plus x minus sin alpha minus x divided by cos alpha plus x minus cos alpha minus x. Evaluate these limits, at least attempt these limits. करिए जरा. So one by one we will be discussing these questions. देखते जाइएगा, concepts clear होते जाएंगे, छोटे छोटे सवाल हैं. First one, limit x tends to 0 sin square px upon sin square qx. Clearly first of all it is in the form of x tends to 0 रखने पर it's in the form of 0 by 0, indeterminate form में, 0 by 0 के form में. ठीक है, क्या किया आपने? limit x tends to 0 sin square px divide by, we want sin theta by theta, that's 1. Limit x tends to 0 sin x by x is 1. It's sin square px here. You want px whole square. Px whole square. ठीक है ना? Just now we have discussed that's px whole square. But px whole square करना है आपको so that sin theta by theta 1 बन जाए उसके लिए. So you will have to multiply as well as divide both. Divided by sin square qx, so that sin square qx, sin square qx, now it's qx whole square, so multiplication and division by qx whole square. Same reason, clear है, कोई दिक्कत नहीं. Now sin square px upon px whole square becomes 1, कोई दिक्कत नहीं. Sin square qx upon qx whole square, that also becomes 1. At the same time, that's px whole square upon qx whole square, x square cancel होगा. दोस्तों ये ध्यान से देखिए, will become 1. It will also become 1. After keeping the limit, it is clearly becoming 1. इसीलिए हमने px whole square से multiply as well as divide किया. p square x square divide by q square x square cancel होगा. बोले सर लिमिट रखने पे 0 by 0 नहीं, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे ना, जो ऑब्वियस रिजल्ट है कैंसिल होना तो कैंसिल करेंगे आप. दैट्स नथिंग बट p square by q square. So result is p square by q square. Right? Now look for the second one. Limit x tends to 0. Presently it is in which form? Presently it is in the form of x tends to 0 रखने पर clearly it is in the form of 0 by 0, 0 by 0 के फॉर्म में. एक अप्रोच हमने प्लान किया, that's 3x here, sin a plus sin b and sin a minus sin b, both the formulas are available with us. Sin a plus sin b, trigonometric ratios and identities formulae must है ना. 2 sin a plus b by 2 डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? 2 sin a plus b by 2, तो 2x plus 6x 8x by 2, 2 sin a plus b by 2 cos a minus b by 2, that's 2x
minus 6x by 2, that means minus 4x by 2. समझ रहे हैं क्या? minus 4x by 2, that's minus 2x, but cos minus theta is cos theta. क्या लिख सकता हूं मैं यहां पर? cos 2x. आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. Second, sin a minus sin b. What's that sin a minus sin b? Sin a minus sin b. 2 cos a plus b by 2. Okay, 2 cos a plus b by 2. That means 5 plus 3. 8x by 2. 4x. Sin a minus b by 2. 5x minus 3x. 2x by 2. That's x. राइट? बोले सर अब क्या किया जाए? देखो जहां तक x टेंस टू 0, cos 0 1. बाय द वे इसको आप 10 2x भी 10 4x भी लिख सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट देखें. cos 0 1, cos 0 1, लिमिट x टेंस टू 0, cos 2x 1, लिमिट x टेंस टू 0, cos 4x is 1. Just I can keep this limit separately. मैं इसको लिमिट 1 बना सकता हूं. That limit x tends to 0. Now it is sin 4x. और डेफिनेटली आपको देख के समझ में आ रहा है. बोले ठीक है सर, 4x से मल्टीप्लाई, 4x से डिवाइड, राइट? डिवाइड बाय sin x, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय x, so that limit x tends to 0, sin 4x by 4x is 1, as well as limit x tends to 0, sin x by x is also equals to 1, right? ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, और यहां पर x कैंसिल होगा. रिजल्ट इज 4. प्लीज नोट डाउन दिस. फर्स्ट वी डिस्कस द लास्ट क्वेश्चन, देन दिस वन. लिमिट x tends to 0, sin alpha plus x minus sin of alpha minus x by cos alpha plus x minus cos alpha minus x. प्रेजेंटली इट इज क्लियरली इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0. प्रेजेंटली ये 0 by 0 के फॉर्म में लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं. बताइए व्हाट शुड बी द अप्रोच हियर? यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला sin a minus sin b in the numerator and cos a minus cos b in the denominator, right? First I am discussing the last question. So limit x tends to 0, sin a minus sin b. Just now we have discussed 2 cos a plus b by 2. The 2 cos a plus b by 2, that's a plus b by 2. 2 alpha by 2, that's alpha. 2 cos alpha plus b by, है ना? 2 cos a plus b by 2 sin a minus b by 2. What it will become? Alpha plus x minus of alpha minus x, that will be x. Divide by cos a minus cos b, that cos a minus cos b, yes, 2 sin a plus b by 2. First of all, a plus b by 2, that's alpha plus x plus alpha minus x by 2. So 2 sin a plus b by 2 sin b minus a by 2, right? So b minus a by 2, that's b, alpha minus x minus of alpha plus x. So alpha cancel होगा. What you will be getting? Minus sin x. And just remember, sin minus x is not equals to sin x. Sin minus x is minus sin x. Right? दोस्तों अगर यहां पे अगर हम ऑब्जर्व करें sin x कैंसिल ही हो रहा है तो जाने दो, 2 भी कैंसिल हो रहा है. व्हाट्स द रिजल्ट? बोले सर लिमिट कहां रखें? लिमिट कहां रखोगे? दैट्स माइनस ऑफ cos अल्फा बाय sin अल्फा, दैट्स cot अल्फा. दैट्स द रिजल्ट. दैट्स द रिजल्ट. किया क्या है आपने? sin a माइनस sin b और cos a माइनस cos b प्रॉपर्ली फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, बस उतने में तो बात बन गई. कुछ भी नहीं था. हाँ, लेकिन अगर मान लीजिए आप फॉर्मूला गलत अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ठीक आ ही नहीं सकता. नाउ लुक फॉर दिस क्वेश्चन. लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी. नाउ इट्स अ डिफरेंट वन.
Now limit is not x tends to 0, it's x tends to infinity sin of a by 2 raised to power x upon sin of b by 2 raised to power x. ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखिएगा, ऑब्जर्व करने वाली बात है. प्रेजेंटली इट इज इन विच फॉर्म? प्रेजेंटली इट इज इन विच फॉर्म ऑफ x tends to 0, sorry, x tends to infinity, x tends to infinity, that x tends to infinity now that x tends to infinity, so 2 raised to power x also tends to infinity. So a by 2 raised to power x tends to 0. Something upon infinity will become 0. At the same time, x tends to infinity, 2 raised to power x also tends to infinity. So b by 2 raised to power x also tends to 0. Right? Limit x tends to 0, sin x by x is equals to 1. Yes, we are aware of that. लेकिन जब x tends to infinity होता है तब a by 2 raised to power x is tending towards 0 as well as b by 2 raised to power x is also tending towards 0. क्या किया आपने यहां पर? लिमिट x tends to infinity लिखते हैं. चलिए देखिएगा, sin of a by 2 raised to power x, a by 2 raised to power x divide by sin theta by theta, a by 2 raised to power x से मल्टीप्लीकेशन और a by 2 raised to power x से डिवीजन. दोनों बात कर ली. a by 2 raised to power x से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सो दैट sin थीटा by थीटा. बोले सर ये x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, समझ लीजिएगा पहले. हियर इट इज sin of b by 2 raised to power x divided by b by 2 raised to power x into राइट. समझ रहे हैं इस बात को आप? बोले सर ऐसा क्यों किया? ये तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी है. देखो जब x टेंड्स टू इन्फिनिटी है तो a by 2 raised to power x कहां टेंड कर रहा है? 0. So when x tends to infinity, a by 2 raised to power x tends to 0. So when x tends to infinity, a by 2 raised to power x tends to 0. So if a by 2 raised to power x tends to 0, sin theta by theta becomes 1. Limit theta tends to 0, sin theta by theta is 1. ये बन जाएगा 1. As well as b by 2x, b by 2 raised to power x also tends to 0. बोले सर लिमिट तो x tends to infinity थी, ठीक है ना? तो x tends to infinity तो b by 2 raised to power x tends to 0. So this will also become 1. It's a by 2 raised to power x upon b by 2 raised to power x. 2 raised to power x cancel होगा and result is what? That's a by b. Result is a by b. आ रही बात समझ में आपको? It's different. x tends to infinity. आपने ऑब्जर्व किया, presently it is in the form of 0 by 0. x tends to infinity तो a by 2 raised to power x tends to 0. देखिए ध्यान से देखिएगा, आप समझ जाएंगे. When we have discussed limit x tends to 0, sin 10x by x, क्या किया था एक्चुअली आपने? बोले सर 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया था हमने, ठीक है. 10 से मल्टीप्लाई एज वेल एज 10 से डिवाइड. और हमने क्या लिखा था? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 10x by 10x इक्वल्स टू 1 लिख दिया था. क्यों? द रीजन इज जब x टेंड्स टू 0, 10x also tends to 0. That's why that limit is equals to 1. Otherwise नहीं. वही हिसाब किताब यहां पर भी है. x tends to infinity, but a by 2 raised to power x tends to 0. Same form बना लिया इसमें. Please note down. One by one, we are going to discuss these 5 questions. जो मैंने आपको दिए थे अटेम्प्ट करने के लिए. First one, limit t tends to pi by 4 sin t minus cos t upon t minus pi by 4.
t tends to pi by 4, sin pi by 4 minus cos pi by 4. It's in the form of 0 by 0. That's fine. Sin t minus cos t upon t minus pi by 4. थोड़ा सा अगर हम ऑब्जर्व करें पहले ही सवाल के लिए, t tends to pi by 4. It is in the form of 0 by 0. क्या किया हमने? लिमिट t tends to pi by 4. न्यूमरेटर में sin t माइनस cos t को ऑब्जर्व किया और √2 से मल्टीप्लाई किया और √2 से डिवाइड किया. मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय √2. क्यों? देख लीजिएगा. 1 बाय √2 sin t माइनस 1 बाय √2 cos t डिवाइडेड बाय t माइनस पाई बाय. ठीक है? बोले सर क्यों का रीजन समझ लेंगे आप. दैट्स लिमिट t टेंड्स टू पाई बाय 4 √2 into that will become sin a cos b minus cos a sin b. sin 45 degree is 1, sorry, sin 45 degree 1 by √2, cos 45 degree is 1 by √2. तो मैं इसे जरूर लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ sin t minus pi by 4 divided by t minus pi by 4. Right? Limit t tends to pi by 4 √2 into sin t minus pi by 4 upon t minus pi by 4. थोड़ा सा और क्लियर कर दूं मैं आप लोगों को. ठीक है? t minus pi by 4 it will become 1. Limit t tends to pi by 4 sin t minus pi by 4 upon t minus pi by 4 becomes 1. कैसे को और समझ लीजिए. क्या किया हमने? t minus pi by 4. Let's say that t minus pi by 4 और इसको एक नया वेरिएबल रख लिया हमने. t minus pi by 4 को u कर दिया. चलो ठीक है. t minus pi by 4 is u. पहले देख लीजिएगा. Now t tends to pi by 4. When t tends to pi by 4, u tends to 0. Yes, u tends to 0. When t tends to pi by 4, u tends to 0. So it will become √2 times limit u tends to 0. बोले सर लिमिट तो t के टर्म्स में थी तो ठीक है ना. t minus pi by 4 is equals to u. तो t tends to pi by 4 तो u tends to 0. So that's limit u tends to 0. Sin u by u, that will become 1. So it's nothing but √2. That's nothing but √2. ये रिजल्ट आ गया. ठीक है? कैसे सोचा? sin t minus cos t upon t minus pi by 4. t tends to pi by 4. So definitely t tends to pi by 4. Cos 45 degree 1 by √2. Sin 45 degree is 1 by √2. So multiplication and division by √2. और हमने कन्वर्ट कर लिया इसे sin a minus b के टर्म. एंड यू आर गेटिंग द रिक्वायर्ड रिजल्ट. जिन लोगों का नहीं हुआ है जस्ट नोट डाउन दिस. यस, वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट द सेकंड क्वेश्चन. जिन लोगों के सारे अटेम्प्ट हो गए वो दे कैन लुक फॉर दीज 2 मोर क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस. सेकंड वन, लिमिट t टेंड्स टू 0. क्या हो रहा है यहाँ पर? t टेंड्स टू 0 रखने पर न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर बोथ आर बिकमिंग 0. सो अगेन इट्स इन द फॉर्म ऑफ 0 by 0. फिर से ये 0 by 0 के फॉर्म में. cos t minus cos 3t, cos a minus cos b फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. sin 3t minus sin t, sin a minus sin b अप्लाई करेंगे. cos a minus cos b and sin a minus sin b फॉर्मूला पता है हमें, बहुत अच्छे ढंग से पता है. That's limit t tends to 0, cos a minus cos b. Yes, 2 sin a plus b by 2, 2 sin a plus b by 2 sin 2t. Sin b minus a by 2, 3t minus t, that's 2t, divide by 2 sin t. बढ़िया. Divide by t into sin a minus sin b, 2 cos a plus b by 2, a plus b by 2, 3 plus 1, 4 by 2, 2t, fine, into sin a minus b by 2, 3 minus 1, 2 by 2, that's 1 sin t. चलेगा? ओके. sin t कैंसिल हो रहा है, होने दीजिए. t tends to 0, cos 0 becomes 1. That's sin 2t upon 2t. t tends to 0, so 2t also tends to 0. Sin 2t upon 2t becomes 1. 2 into 1, that's 2. Result is 2.
सब कुछ आसानी से हो जाता है प्रोवाइडेड अगर आपको फॉर्मूले ठीक ढंग से पता है, राइट। कॉस ए माइनस कॉस बी, साइन ए माइनस साइन बी अप्लाई किया, साइन टी कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दिया। cos 0 is 1, so cos 2t is becoming 1. Here it is sin 2t, division में भी 2t है, sin 2t upon 2t is 1. You are getting the required result as 2. ठीक है, look for this question also. Just now we have discussed in fact. Limit x tends to infinity, a raised to power x sin of b by a raised to power x. Again, x tends to infinity. If x tends to infinity, it should be given that a is positive. X tends to infinity, then a raised to power x also tends to infinity. ठीक है, x tends to infinity, a raised to power x also tends to infinity. लेकिन दोस्तों ऐसा तब होगा जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब। इफ इट्स अ फ्रैक्शनल वैल्यू, बता दूं मैं आपको एक एडिशनल बात, इफ a इज इन बिटवीन 0 एंड 1, अगर a की वैल्यू फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल वैल्यू की पावर अगर आप इंक्रीज करेंगे तो वैल्यू टेंड्स टू 0, तो ये 0 चले जाएगा, तो समथिंग अपॉन 0 विल बिकम अनडिफाइंड। So it should be given in the problem that a is greater than 1. Clear है? So x tends to infinity, a raised to power x also tends to infinity. So b by a raised to power x tends to 0. ठीक है, so its limit x tends to infinity, a raised to power x into sin of b by a raised to power x, सीधी सी बात है साइन थीटा बाय थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करना है हमें, क्योंकि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो b बाय a टू द पावर x टेंड्स टू 0, you can definitely say multiplication and division by b by a to the power x, right? Clearly becomes 1, a raised to power x cancel होगा, and its result is b. Yes, it's b. You can note down this. Clear है? प्रीवियस क्वेश्चन में भी या प्रीवियस टू प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इस बात का यूज किया था, सेम अप्रोच ही है, कंफर्टेबल होते जाना चाहिए आप लोगों को, है ना? जस्ट नोट डाउन दिस। नेक्स्ट वन, लिमिट n tends to infinity n times cos pi by 4n into sin pi by 4n. Limit n tends to infinity n cos pi by 4n sin pi by 4n. क्या करेंगे आप? कंसंट्रेट पहली बात इधर करेंगे अपन, है ना? sin 2a, the formula is sin 2a is 2 sin a cos a. Here it is cos a sin a, angle same है, pi by 4n, pi by 4n, multiplication and division by 2 first of all, 2 से multiply, 2 से divide. The reason is 2 sin a cos a will become sin 2a, सीधी सी बात है। तो मैं लिखता हूँ इसको, limit n tends to infinity 2 sin a cos a, that's sin 2a, that will become sin, what it will become? Sin pi by 2n. Earlier it was sin pi by 4n, so sin 2a होगा तो 2 into pi by 4n, that will be sin pi by 2n, ठीक है, into n by 2. Again, limit n tends to infinity, n tends to infinity, यहाँ पे pi by 2n है, pi by 2n से मल्टीप्लाई किया और pi by 2n से डिवाइड किया, ऐसा बोलते हैं, pi by 2n से मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिवीजन. द रीजन इज, नाउ इट्स वेरी क्लियर, n टेंड्स टू इंफिनिटी, इफ n टेंड्स टू इंफिनिटी तो pi by 2n टेंड्स टू 0.
will become sin pi by 2n upon pi by 2n becomes 1. n से n कैंसिल हो रहा है, होने दीजिए. रिजल्ट इज pi by 4. ठीक है, सिंपल सा सवाल. द नेक्स्ट वन, लिमिट t टेंड्स टू pi by 2, 1 minus sin t upon pi by 2 minus t square. When t tends to pi by 2, it will become 0, denominator will become 0, as well as sin pi by 2 is 1, numerator is also 0. It's in the form of 0 by 0, 0 by 0 के फॉर्म में. लिमिट इज t tends to pi by 2. डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया हमने, pi by 2 minus t. देखिएगा what we have done here, pi by 2 minus t, हमने इसको नया वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर दिया. दैट्स pi by 2 minus t. चेक करते हैं जरा कुछ होता है या नहीं होता है. इज इक्वल टू यू. मैं ये नहीं कह रहा हूं दैट्स द ओनली अप्रोच. अभी आपके जब आप क्लास 12 में पढ़ेंगे तो कुछ और अप्रोच सीखेंगे वहां पर आप. देयर इज अ रूल, एल हॉस्पिटल रूल, जो स्कूल एग्जाम में तो परमिटेड नहीं है लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में परमिटेड है, लेकिन वो फॉर क्लास 12, एल हॉस्पिटल रूल. लेकिन अभी उसके बारे में हम बात नहीं कर पाएंगे. pi by 2 minus t, we have kept that pi by 2 minus t equals to u. देखिएगा, when t tends to pi by 2, u tends to what? t tends to pi by 2, u tends to 0. अब डेफिनेटली लिमिट किसके टर्म्स में हो जाएंगी? आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया है, pi by 2 minus t को u रख दिया है, तो लिमिट इज इन टर्म्स ऑफ लिमिट u tends to 0. नई लिमिट जो है दैट इज इन टर्म्स ऑफ u tends to 0. pi by 2 minus t को आपने u रखा, दैट्स u स्क्वायर हियर. इन द न्यूमरेटर, बोले सर न्यूमरेटर में क्या होने वाला है? 1 माइनस साइन इन प्लेस ऑफ t आपको u के टर्म्स में चेंज करना होगा, एंड दैट t इज pi by 2 minus u. pi by 2 minus, आ रही के बात समझ में आपको? सब कुछ u के टर्म्स में ले आए हम, राइट? सो इट इज लिमिट u टेंड्स टू 0, sin 90 minus theta cos theta, right? 1 minus cos u, again 2 sin square u by 2, right? Sin square u by 2 upon u square, multiplication division by what? Not 2, 4. 4 से मल्टीप्लाई, 4 से डिवाइड. नाउ लिमिट u टेंड्स टू 0, sin square u by 2 upon u square by 4 becomes 1, and the result is 1 by 2. All of you are getting this? ऐसा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर एक नई बात आपने देखी, वी हैव केप्ट pi by 2 minus t equals to. Clear both the questions? Just note down this. First question, previous year JEE question also. Limit x tends to 0, sin pi cos square x upon x square. यूजुअली क्या होता है, हमने जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन देखे उसके अकॉर्डिंग, बोले सर ठीक है लिमिट्स दिया हुआ है साइन के टर्म्स में, तो बोले सर हम क्या करते हैं, साइन थीटा बाय थीटा बना लेते हैं इसको. साइन थीटा बाय थीटा अगर हमें कन्वर्ट करना होगा, फॉर दैट लिमिट x टेंड्स टू 0, बोले सर ठीक है साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर x इज देयर, बोले सर पाई कॉस स्क्वायर x से मल्टीप्लाई और पाई कॉस स्क्वायर x से डिवाइड, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय पाई कॉस स्क्वायर x. सर बोले सर साइन थीटा बाय थीटा अब तक बनाते आ रहे हैं, ये भी वही कर लिया हमने, इनटू एक्स स्क्वायर अपनी जगह. बोले सर लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन पाई कॉस स्क्वायर x अपॉन पाई कॉस स्क्वायर x बिकम्स 1. चलिए ठीक है, cos 0 becomes 1, right? Pi, but x tends to 0, so pi by 0 tends to infinity, undefined हो जाता है. लिमिट इज कमिंग एज अनडिफाइंड. ये तो मैं आपको पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि लिमिट
could be plus infinity, limit could be minus infinity, that we have discussed. लिमिट प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है, तो आप बोलेंगे सर ठीक है, लिमिट प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, क्या गलत है? परफेक्ट. नो, इट्स नॉट करेक्ट. यहाँ एरर है, और अच्छी खासी एरर है. देखिएगा, लिमिट इज नॉट इन्फिनिटी. लिमिट कुड बी इन्फिनिटी, लिमिट कुड बी माइनस इन्फिनिटी, लेकिन यहां पे लिमिट इन्फिनिटी नहीं है. द रीजन इज व्हेन वी से, अब तक जो भी सवाल देखे हमने, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, साइन 10x अपॉन x, तो 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड किया था. व्हेन x टेंड्स टू 0, तो 10x ऑल्सो टेंड्स टू 0. कुछ क्वेश्चंस देखे जहां पर x टेंड्स टू इन्फिनिटी था, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो a बाय 2 रेज़ टू पावर x टेंड्स टू 0. बट इफ यू ऑब्जर्व हियर, x टेंड्स टू 0, आपने क्या किया? डायरेक्टली इसको 1 बना लिया. लेकिन अगर आप थोड़ा सा सोचे, पहली बात तो प्रेजेंटली इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 बाय 0, क्योंकि cos 0 इज 1, sin पाई 0, 0 बाय 0 का फॉर्म है. ठीक है, आपने कहा इंडिटरमिनेट फॉर्म में बाहर ला रहे हैं सर, ठीक है. लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करें, इफ x टेंड्स टू 0, पाई cos स्क्वायर x, cos 0 इज 1, टेंड्स टू पाई, इट्स नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इसलिए गड़बड़ हो रही है. आप समझ रहे हैं इस बात को? क्यों एरर है? क्यों इसको आप 1 नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते आप इसको 1, क्योंकि 1 होने के लिए जरूरी है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1. यहां पे पाई कॉस स्क्वायर एक्स इज नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इट्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई. इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता. ये ध्यान में रखने वाली बात. आ रही बात समझ में आपको? x टेंड्स टू 0, पाई cos स्क्वायर x इज नॉट टेंडिंग टुवर्ड्स 0, इट्स टेंडिंग टुवर्ड्स पाई. और अगर आप ऐसा करना चाहें तभी कर सकते हैं, जब x टेंड्स टू 0 और पाई cos स्क्वायर x ऑल्सो टेंड्स टू 0, तब आप ऐसा कर सकते थे. ठीक है. बोले सर फिर क्या किया जाए? तो गड़बड़ हो गया. देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ऑफ पाई cos स्क्वायर x को लिखा हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. cos स्क्वायर x को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x. ठीक है. लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन पाई माइनस पाई साइन स्क्वायर x, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, that will become sin pi sin square x divided by x square. क्लियर है क्या? कुछ नहीं, cos स्क्वायर x को हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिखा, और sin 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, that we have used here. Now if you observe, if x tends to 0, pi cos square x tends to pi, but pi sin square x tends to 0. हमारी बात बन जाती है. Are you getting the difference now? कि क्या करना है और कैसे करना है और क्या नहीं करना है. लिमिट x tends to 0, sin pi sin square x डिवाइड बाय पाई sin square x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने. राइट? मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय पाई साइन स्क्वायर एक्स. बाय एक्स स्क्वायर. ओके. साइन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन पाई साइन स्क्वायर एक्स बिकमिंग 1. यह वैल्यू 1 बनेगी. साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, sin square x upon x square, that also becomes 1. Result is pi. इसका रिजल्ट आएगा pi. That's the result. अभी समझ में आया आपको कंसेप्ट ऑफ लिमिट? यहां क्यों नहीं कर सकते थे ऐसा, और अभी क्यों कर पा रहे हैं हम ऐसा? Because the limit theta tends to 0, sin theta by theta is 1.
तो साइन थीटा बाय थीटा को 1 लिखने के पहले जरूरी है कि थीटा मस्ट ऑल्सो टेंस टू 0। वो यहां पे नहीं हो पा रहा था। क्लियर है? नाउ यू कैन नोट डाउन दिस। अटेम्प्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन। So limit x tends to 1, 1 minus x 10 pi x by 2. It is in which form? Limit x tends to 1, 1 minus x 0 and 10 pi by 2 infinity. Presently it is in the form of indeterminate form 0 into infinity. Presently it is in the form of 0 into infinity. तो डेफिनेटली ये भी एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है और इस इंडिटर्मिनेट फॉर्म से हमें बाहर लेके आना होगा। देखिएगा कैसे, क्या किया जा सकता है, क्या सोचा आप लोगों ने? चलिए 1 माइनस एक्स को कुछ अलग वेरिएबल ले लें। इफ आई टेक 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, वी हैव टेकन 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू टी, एक्स टेंस टू 1, तो टी टेंस टू 0। ये तो क्लियर है, एक्स टेंस टू 1 तो टी टेंस टू 0। इट विल इनफैक्ट बिकम लिमिट t टेंस टू 0, न्यू लिमिट इज इन टर्म्स ऑफ t, और जब मैं t के टर्म्स में लिखूंगा तो सारी बातें t के टर्म्स में कर लूंगा। 1 माइनस एक्स को t रखा हमने इंटू 10 पाई बाय 2 इंटू एक्स, और x को रिप्लेस किया आपने 1 माइनस t। ठीक है, ओके। देन limit t tends to 0, t into 10 pi by 2 minus pi by 2t, 10 pi by 2 minus pi by 2t, 10 90 minus theta, cot theta, that will become cot pi t by 2, right? बोले सर इससे तो कुछ हुआ नहीं, बात देखें जरा। कॉट को आप कॉस साइन के टर्म्स में ला सकते हैं या कॉट को आप टेन के टर्म्स में ला सकते हैं। देखिएगा, दैट इज लिमिट t टेंस टू 0, कॉट को 10 के टर्म्स में कन्वर्ट किया। pi t by 2. We also know that limit theta tends to 0, tan theta by theta is also equals to 1. So here it is 10 pi t by 2. ठीक है, टेन पाई टी बाई 2 से by pi t by 2, so pi t by 2 से multiply as well as divide, it will become 1, t cancel होगा and result is 2 by pi, that limit is 2 by pi. Clear है? Yes, we have kept 1 minus x equals to t and that's the procedure. आप cos साइन में भी कर दे तो साइन थीटा बाय थीटा इक्वल्स टू 1 बनाना होता, cos 0 1 होता, बट यस लिमिट है आपके पास, लिमिट x टेंस टू 0 tan x by x1 that we have used here, right? Now you can note down this. Limit x tends to infinity, this expression is equals to 10. यहां पर भी क्या हो रहा है, लिमिट इज गिवन टू यू एज अ फाइनाइट नंबर 10 एंड यू हैव टू इवैल्यूएट द कांस्टेंट्स a b c d. Presently it is in the indeterminate form. Which form? Infinity minus infinity. Presently it is in the form of infinity minus infinity. Indeterminate form में बाहर लाने के लिए आपने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज किया मतलब क्या, किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे आप? इफ इट इज, एक बहुत सिंपल सी बात है, रूट a माइनस रूट b, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय रूट a प्लस रूट b अपॉन रूट a प्लस रूट b, है ना? तो आपने यहाँ क्या किया, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय, मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय रूट ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 प्लस रूट ओवर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 3x माइनस डी से मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज डिवीजन। इतनी बात तो समझते हैं आप? दैट विल बी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी। दैट डिनोमिनेटर इज रूट ओवर x रेज़ टू पावर 4 प्लस ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस bx प्लस 2 प्लस रूट ओवर x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस डी। अब जब मल्टीप्लीकेशन न्यूमरेटर में होगा तो रूट ए माइनस रूट बी मल्टीप्लीकेशन विथ रूट ए प्लस रूट बी becomes what? A minus b. That will become a minus b. If it becomes a minus b, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा प्लीज, रूट a माइनस रूट b मल्टीप्लीकेशन विथ रूट a प्लस रूट b, दैट विल बिकम a माइनस b. a माइनस b जब आप करेंगे x रेज़ टू पावर 4, अच्छी बात है, कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। x क्यूब के साथ में अलॉन्ग विथ x क्यूब, वेरी गुड, a माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब, x रेज़ टू पावर 4 कैंसिल होगा, इट्स a माइनस 2 इंटू एक्स क्यूब, देन अलॉन्ग विथ एक्स स्क्वायर 3 प्लस c, ठीक है, प्लस b माइनस 3, ओके, प्लस 2 प्लस d, ओके ओके ओके, b माइनस 3 इंटू एक्स, परफेक्ट, अच्छी बात है। न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट डिग्री प्रेजेंट है x की, दैट्स 3। अब हम केवल डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व करते हैं और सॉल्व कर रहे हैं। मैं केवल डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं, मैं न्यूमरेटर को कुछ नहीं कर रहा हूं। न्यूमरेटर इज एज इट इज, पहले देखिएगा प्लीज, केवल डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहा हूं। डिनोमिनेटर इज हियर हाईएस्ट डिग्री इज x रेज़ टू पावर 4। अच्छा, एक बात हम बहुत ठीक ढंग से जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी टेंड्स टू 0। So x raised to power 4 is the highest term here. X raised to power 4 is the highest term here. कॉमन लिया हमने, केवल डिनोमिनेटर लिख रहा हूं मैं, है ना, दैट विल बी एक्स स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस a बाय एक्स 3 बाय एक्स स्क्वायर b बाय एक्स क्यूब प्लस 2 बाय, ओके, प्लस आपने एक्स स्क्वायर इधर से भी कॉमन लिया, ये एक्स रेज़ टू पावर 4 कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर कॉमन होगा, राइट? वन प्लस 2 बाय एक्स c बाय एक्स स्क्वायर, राइट? अब पूरा ऑब्जर्वेशन वाला गेम है, उसको ध्यान से सुनना और समझना है, लिखा मत करें आप, जब मैं पढ़ा रहा हूं समझा रहा हूं तो, है ना। डिनोमिनेटर, तो ये क्या होता है, जब आप दो जगह काम करोगे तो नहीं हो पाएगी बात, एक ही जगह फोकस करो ना, और आई एम गिविंग यू सफिशिएंट टाइम नोट करने के लिए। देखो, व्हेन x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर बता रहा हूं मैं केवल आपको, 0 0 0 0 1 बच रहा है यहां पे, रूट ओवर 1 प्लस 0 0 0 0 1, रूट ओवर 1 इज 1, राइट, आफ्टर कीपिंग द लिमिट। इफ यू ऑब्जर्व द न्यूमरेटर नाउ, अब सारा गेम ऑब्जर्वेशन का है और लॉजिक का है। न्यूमरेटर में जो हाईएस्ट डिग्री प्रेजेंट है x की, दैट्स 3 हियर, और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट डिग्री प्रेजेंट है दैट इज 2। एक बात तय कि देयर शुड नॉट बी एनी टर्म ऑफ x क्यूब, और यू कैन से
coefficient of x cube must be 0. The reason is very clear to you because if it is remaining here, x square से x square cancel होगा, but x is still remaining. X tends to infinity will make it infinity. But limit is a finite number 10. We have discussed in the previous class also. So ये बात है coefficient of x cube must be 0. That means a minus 2 must be equals to 0. You got the value of a. That's 2 here. Now the second term, observe here. 3 plus c into x square. Here degree is 2. Here degree is 2. In fact, this is the term which is, yes, which gives you the limit. Which gives you the 10. यही वो term होगी जो आपको देगा 10. If you observe the third term here, b minus 3 into x. Here degree of x is 1. Degree of x is 2. देखो ये x और एक x कैंसिल होगा, राइट? बट b माइनस 3 डिवाइड बाय x, x टेंस टू इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम्स 0. इसे 0 बनना है, तय है. वॉट एवर बी द वैल्यू ऑफ b, b की चाहे जो वैल्यू हो, ये तो 0 बनेगा. लाइकवाइज दैट्स द कांस्टेंट टर्म हियर, दैट्स 2 प्लस d हियर, कांस्टेंट टर्म. एंड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. बोले सर इसका क्या हुआ, ये तो खत्म हो गया है. 1 प्लस 1 दैट्स 2. कांस्टेंट डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी बिकम्स 0. सो d कैन आल्सो टेक एनी रियल वैल्यू, चाहे जो भी रखो, ये तो 0 ही बनने वाले हैं दोनों. सो d कैन टेक एनी रियल वैल्यू, d can take any real value, and this is the term which gives you the limit. So that's nothing but 3 plus c not equals to 10. 3 plus c, ये x square cancel होगा, x tends to infinity पे, it's root over 1 plus root over 1, that will be 1 plus 1, that's 2, that 3 plus c by 2 equals to 10, that's c equals to 17. आया समझ में? आप लोगों के लेवल से थोड़ा ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन ठीक है. अभी आप लोगों को जो क्वेश्चन है उसमें यूजुअली लिमिट गिवन है और ABCD नहीं निकालना पूछते हैं, बट ठीक है, हम समझ सकते हैं. दोबारा देख लीजिएगा. फाइनल रेशनलाइज किया आपने और अरेंज किया टर्म्स को. डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0. उसके अकॉर्डिंग यू हैव टेकन x रेज़ टू पावर 4 कॉमन, x रेज़ टू पावर 4 कॉमन. In denominator you are getting the highest term as highest degree of x as 2. Numerator को आपने अरेंज किया, there should not be any term of x cube. या coefficient of x cube must be 0. Coefficient of x cube must be 0, क्योंकि अगर ये x cube रहा तो वो undefined बना देगा, क्योंकि x square से x square cancel होगा, but x is still remaining, that makes the limit undefined. ये तो होना ही नहीं चाहिए. जहां तक इन दोनों की बात करें, b माइनस 3 इंटू एक्स और 2 प्लस डी, डिग्री ऑफ x 1, डिनोमिनेटर डिग्री ऑफ x इज 2. कैंसल जब आप करेंगे तो एक x स्टिल रिमेनिंग, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम 0, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी बिकम 0. b एंड d वॉट एवर वैल्यूज यू कैन टेक, ले लीजिए, 0 ही रहेगा. एंड दिस इज द टर्म विच गिव्स यू द लिमिट, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर और ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल होगा. And that will be 3 plus c by 2 equals to 10, that's c equals to 17. That's fine. यहीं पे conclude करेंगे.